तो अगर हम शिफ्ट की बात करते हैं तो ये शिफ्ट एक दिन में नहीं हुआ है. इट हैज़ टेकन सम टाइम. So usually जो shifts होते हैं there are many factors. There can be environmental factors, there can be social factors, there can be economic factors. अगर आप शुगर पेशेंट हो और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो definitely the risk of complications, be it cardiac issues, be it kidney issues, be it eye issues, be it sexual issues, वो सब बढ़ेंगे. It is manageable. तो हमें सबसे पहले ये चीज़ पॉजिटिव साइड देखनी है कि अगर कोई चीज़ मैनेजेबल है तो we should not crave about the complications. अगर मैं कई पेशेंट्स को बोलता हूँ सर अगर डिजीज मैनेजेबल है you should be happy the drug is available and you need to consume it. क्या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम डायबिटीज की मेडिकेशन लॉन्ग टर्म में ले रहे हैं तो इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स और एनीथिंग एट ऑल? वो देनी है 500 मिलीग्राम, वो शायद 1500 मिलीग्राम डाल रहे हैं. अच्छा, उसी में पीस के उसमें पाउडर बना के दे दिया. एग्जैक्टली, मे बी ग्लिमिप्राइड डाल रहे हैं, मे बी दोज ड्रग्स व्हिच आर गिवन टू ए पेशेंट इन अ रेगुलेटेड अमाउंट बाय द एलोपैथिक डॉक्टर, बट वो दे रहे हैं एज ए कोएक्स आपको अनरेगुलेटेड अमाउंट. तो अब हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा तो शुगर लो हो गया. जैगरी एक अनरिफाइंड अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ शुगर ही है. वो शुगर अगर मान लो कि आपका शुगर खाने से, रॉ शुगर खाने से 100 का स्पाइक आता है तो शायद वो उतना स्पाइक नहीं लाएगा, लेकिन वो स्पाइक जरूर लाएगा क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट है. तो ये रिवर्सल का यही प्रोसेस है. See, the word reversal is not right. First of all, we have to correct the English. Reversal is a marketing gimmick of the online companies to sell their product. We don't need to fall into the trap. It makes you happy. You can accept the term of reversal, but the truth is, diabetes can go into remission. It can't be reversed, and that is for every disease. मैं आज अच्छा पढ़ाई करता हूँ तो मेरे नंबर आएंगे. मैं कल पढ़ाई करना छोड़ दूंगा मेरे नंबर गिर जाएंगे. Insulin was discovered in 1921, so it is almost 104 years old. It is the oldest medicine available for diabetes right now. हेलो एंड वेलकम टू द ग्लोबल ह्यूज. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रितेश बंसल. नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं ठीक हूँ, आप बताइए. बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच. आज आपने समय निकाला हमारे लिए यहाँ आने के लिए. वेलकम सर, एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपका हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए प्लीज. Okay. I am Dr. Ritesh Bansal. I am a consultant diabetologist and physician. So I work in Saroj Diabetes and Research Center. We are a dedicated center for diabetes and related complications. I am based in Naveen Shadra, East Delhi. So अगर मैं अपनी education की बात करता हूँ, I have done my MBBS from University College of Medical Sciences. It's in GTB Hospital, East Delhi again. जी. I have done my MD from MAMC. Post MD, I have done my fellow in advanced diabetes and endocrinology from Medanta, and I have certain fellowships to my accreditation, and currently I am working as a senior consultant in my sector. And it's been how many years you're into this? I entered into practice in 2014, so till PG, if you calculate, it is almost 10-12 years now. Wonderful. सर, डायबिटीज को एक ओल्ड एज या फिर रिच मैन्स डिजीज कहा जाता था काफी समय, कुछ समय पहले तक. नाउ वी गाइज आर डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. एंड चाहे यंग लोग हों, चाहे ओल्ड लोग हों, पतले हैं, मोटे हैं, एवरी एज ग्रुप, एवरी बॉडी टाइप इज गेटिंग अफेक्टेड बाय डायबिटीज. तो ऐसा ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या कारण है इसके? You have very rightly mentioned that earlier हम पेशेंट्स हमारे पास आते थे 50 years, maybe 60 years, then we suspect कि हाँ इसको डायबिटीज हो सकता है. Now a patient of maybe 30, even 20 years, maybe even less than that is coming to me. I won't be मैं बिल्कुल नहीं हिचकूंगा कि उसका शुगर ना चेक करूं. तो इस चीज को हम एपिडेमियोलॉजिकल शिफ्ट बोलते हैं. तो डेफिनेटली द एज ग्रुप that earlier it used to be in 5th or 6th decade of the life, it is shifting early. Maybe patients of 30 or maybe 40s are getting diabetes and they are accounting for the majority of the patients. So पहले अगर मैं 10 पेशेंट डायबिटीज के देखता था उसमें से 8 लोग 50 साल प्लस होते थे. अब मैं अगर 10 पेशेंट देखता हूँ उनमें से मे बी 50-50 का रेशियो तो आ चुका है. 50 पेशेंट्स they will be less than 40 and 50 will be more than 40. So अगर हम शिफ्ट की बात करते हैं तो ये शिफ्ट एक दिन में नहीं हुआ है. इट हैज टेकन सम टाइम. So usually जो शिफ्ट्स होते हैं there are many factors.
There can be environmental factors, there can be social factors, there can be economic factors. Obviously, the disease in itself has its own cycle, how it plays, how it evolves. So जी अगर हम डायबिटीज की बात करें तो पहली चीज है, इट्स ए डिजीज ऑफ लाइफस्टाइल. पहले अगर हम बात करते थे, पेशेंट्स एक्टिव रहते थे. अभी जो पेशेंट्स हम बोल रहे हैं 50 या 60 साल के हैं, तो उनको डायबिटीज अपने टाइम में इसलिए नहीं हुई बिकॉज वो जितना कंज्यूम करते थे कैलोरीज, वो उतना खर्च भी करते थे. इट इज अ गेम ऑफ इनपुट एंड आउटपुट. आपने मे बी 2000 किलो कैलोरीज कंज्यूम किया, आपने 2000 किलो कैलोरीज खर्च भी किया. दे वर एक्टिव, दे वर मे बी गोइंग बाय साइकिल्स, दे वर नॉट लाइक वी, फोन नहीं थे, वी यूज्ड टू प्ले. सो सब कुछ चीजें होती थी, एक्टिविटी लेवल्स वर देयर. द कैलोरी ऑब्वियसली इनटेक माइट हैव इंक्रीज और डिक्रीज्ड. बट अगर मैं अपने यंग पॉपुलेशन की बात करता हूँ, बच्चों को देखते हैं, तो दे डोंट डू दैट. हम मे बी इनटेक तो उतना ही कर रहे हैं, रादर वी आर कंज्यूमिंग मोर ऑफ शुगर. वी आर नाउ हैव ऑप्शंस. हमारे टाइम में चॉकलेट्स वगैरह यूज्ड टू बी लग्जरी. कोई अपना टाइम याद है, 10 दिन में, 15 दिन में या महीने तक हम चॉकलेट नहीं खाते थे, और हमको बहुत एक वो रहता था एक्साइटमेंट कि एक चॉकलेट मिलेगी, और वो भी शायद हम 2-3 दिन चलाते थे. दैट थिंग इज चेंजिंग. आजकल एक डेफिशिएंसी या जो एक बोलते हैं कमी नहीं है. हमारे बच्चे डेली चॉकलेट खा लेते हैं, वो खेलने तो जाते ही नहीं है, फोन पे लगे रहते हैं. तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद दैट एज ग्रुप विच वी आर टॉकिंग अबाउट, 30-40 वाला. वो डेस्क जॉब में आ गए हैं, वो खा तो रहे हैं, दे आर नॉट कंज्यूमिंग इट दैट वेल. स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गए. हमारे पहले टाइम में इतना मेंटल स्ट्रेस नहीं होता था. वी यूज्ड टू डू ऑल दोस थिंग्स, बट स्टिल द कंपोनेंट ऑफ मेंटल स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग. जॉब्स भी अगर हम बात करते हैं, व्हेन आई सी पेशेंट्स, व्हेन आई टेक हिस्ट्री, मैं पूछता हूँ आप क्या करते हो. 30-year-old कमिंग टू मी विद डायबिटीज, सर मैं IT प्रोफेशनल हूँ. 30-year-old कमिंग टू मी विद डायबिटीज, आई आस्क हिम, सर मैं तो BPO में काम करता हूँ, मैं तो रात को ही काम करता हूँ. तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं. मैं पूछता हूँ वॉक करते हो, नहीं सर मैं रात को आके 5 बजे तो आता ही हूँ सुबह, फिर सो जाता हूँ, फिर दोपहर को उठता हूँ, फिर मैं 1-1.5 घंटा कुछ करता हूँ और मेरा नेक्स्ट डे का काम स्टार्ट हो जाता है. तो this is one of the major factor which is contributing to the shift of maybe के rich man or old age group diabetes to a disease of everyone, not just being rich. Poor patients, maybe even a patient who is doing some menial job like maybe factory worker, they are also getting this disease because of these combinations. The food and the other factors. Food, stress levels, environment. अभी हम बात कर रहे हैं दिल्ली का AQI is 500, and that is definitely one more factor adding to the prevalence of these diseases. Absolutely. So तो अगर उसी की अगर हम बात करें कंटिन्यूएशन में, तो ये कितना और क्या रोल प्ले करता है, जो पोल्यूशन है, जो एनवायरनमेंट है, what role majorly does it play in this? See, environment is a very major factor in contributing to many diseases. So हम अभी तक lung issues की बात कर रहे थे. Maybe patients who are having asthma, they get a exacerbation of these diseases during these seasons. But definitely diabetes का भी अगर हम देखते हैं, it rises. The control of sugar becomes poor. The prevalence of diabetes is increasing because of these factors. So there has been studies which are linking air pollution or your environment to the insulin resistance. And insulin resistance is again the major factor in diabetes. So studies ने बोला है एयर पॉल्यूशन होता है या एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उससे आपका शुगर लेवल्स बढ़ेंगे एंड यू माइट बिकम डायबिटिक. And also generally when there is pollution or environmental issues, so it's first thing is advisable by the doctors is के बाहर मत जाओ और कोई वर्कआउट मत करो, क्योंकि पहले ही पोल्यूशन बहुत ज्यादा है. इफ यू आर गोइंग टू वर्क आउट मोर, यू आर गोइंग टू ब्रीथ मोर एंड यू आर गोइंग टू टेक इन मोर पोल्यूटेंट्स रादर देन द गुड पार्ट ऑफ द एयर. तो वो भी फिर इफेक्ट तो करेगा. सर वर्कआउट नहीं कर पा रहा कोई, तो वो कैलोरी बर्न कहाँ से करेगा जो कंजम्पशन हो रहा है. I agree with you that it is indirectly linked to the rising sugar levels in the winters. There are other factors as well, but still I think that is a very short term solution. Maybe not going out is not a solution. Maybe how we can avoid that, maybe how we can overall reduce make our air more breathable. So that is a challenge, but still I agree with you. Your maybe patients who are
मैं बात करता हूँ जब उनसे ओपीडी में आते हैं, तो एक फैक्टर वो भी होता है। मैं पूछता हूँ, आप वॉक कर रहे हो? नहीं सर, अभी तो बच्चों ने मना कर दिया। वो कह रहे हैं अभी बाहर मत जाओ, एडवाइजरी बिल्कुल आई हुई है, ग्रैब बिल्कुल 3 लगा हुआ है। ग्रैप 3 लगाए हुए हैं अभी। Obviously, they are those factors also contribute to their rising sugar levels in this season. So that Right. is one major factor. एब्सोल्युटली सर। सर आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी जो बहुत कॉमन चीज़ें हो चुकी हैं, वी हैव डिस्कस्ड विद प्रीवियस गेस्ट्स आल्सो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हर चीज़ के अंदर। तो आई एम श्योर कि डिप्रेशन, एंजाइटी और रिलेटेड चीज़ें जो हैं ये डायबिटीज़ में भी रोल प्ले करती हैं। See, again, depression, anxiety, they all are lifestyle disorders. There is not exactly a single factor, but still it's a combination of factors which is contributing to maybe depression and anxiety. And what I have seen in my practice is कि the shift, पहले मे बी प्री कोविड या अभी भी अगर हम बात करते हैं, तो पहले हम ऑफिस जाते थे, हम 4 लोगों से मिलते थे, हमारा मे बी बात करके थोड़ा-सा हम बेटर फील करते थे, हम एक दूसरे के साथ वी यूज्ड टू लाफ अराउंड। राइट। दैट थिंग इज चेंजिंग। अभी हम बात देखते हैं, पेशेंट पीपल आर वर्किंग फ्रॉम हाउस, दे आर नॉट मूविंग अराउंड, दे आर नॉट टॉकिंग टू एनी अदर, मे बी जस्ट वर्क मीटिंग्स होती हैं, लैपटॉप खुला, लैपटॉप बंद हो गया। वेयर इज द वो आपका जो एक मिंगलिंग होती थी वो कहाँ है? तो दैट प्लस सोशल मीडिया, मैं देखता हूँ फेसबुक पे सभी खुश है, सिर्फ हम ही दुखी हैं। अब वो ऐसा परसेप्शन है कि वो खुश है और मैं दुखी हूँ, या सही में मैं दुखी हूँ। एनी हाउ द पॉइंट बीइंग के डेफिनेटली डिप्रेशन का जो प्रेवलेंस है वो बढ़ रहा है, मे बी अवेयरनेस भी बढ़ रही है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है, बट स्टिल डिप्रेशन, एंजाइटी, दे ऑल आर बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ एक्टिविटी, आर मे बी वी आर जस्ट सिटिंग सॉलिटरी, कोई हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं सारा दिन, या तो रील्स देखते हैं, या तो सोते हैं, या खाते हैं। So all those things are contributing to more of like mental issues बढ़ रहे हैं। mental issues again linked to your eating habits खराब होती है, eating habits खराब होती है, तो maybe blood pressure, sugar, cholesterol issues सब they increase. ठीक है, गेटिंग योर पॉइंट। नाउ जैसा एंजाइटी और डिप्रेशन का हमने बात करी, ऐसे ही ये बहुत कहा जाता है कि अगर आपको शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, तो ये आपको बाकी सारी चीज़ों में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और बाकी किसी और चीज़ का अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो या कोई क्योर ले रहे हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। See, I would like to correct this part. Definitely, diabetes in itself is not a good disease to carry. First thing about diabetes, we can't cure it. Right now, we don't have a cure, we can control it. But मैं patients को ये भी बोलता हूँ कि we have a huge number of drugs, we have plenty of options to control it beyond your lifestyle modifications. So ऐसा नहीं है कि manageable नहीं है, manageable है. Yes, अगर आप शुगर पेशेंट हो और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो डेफिनेटली द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, बी इट कार्डिक इश्यूज, बी इट किडनी इश्यूज, बी इट आई इश्यूज, बी इट सेक्सुअल इश्यूज, वो सब बढ़ेंगे। बट द पॉइंट इज कि वो तब बढ़ेंगे अगर आप अपने शुगर पे ध्यान नहीं दोगे, और वो हर डिजीज के साथ है। इवन ए बीपी पेशेंट, अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, आपका बीपी अगर ज्यादा रहता है, आप कहते हो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो बीपी हाई है सर, आई एम ओके, बट स्टिल इट इज कॉजिंग डैमेज। इट्स लाइक मे बी आपकी बॉडी में वो इंटरनल इन्फ्लेमेशन कर रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, ऑर्गन्स डैमेज कर रहा है। तो सेम वे वो हर डिजीज के साथ, अभी डोंट नीड टू वरी फॉर द डायबिटीज इटसेल्फ की सिर्फ शुगर ऐसी बीमारी है जो सब चीजों को खराब करती है। वो आपका एक पैर में अगर आपके चोट लग जाए तब भी वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, आप चल नहीं पाओगे। अगेन एक आपको यू विल फील ए बिट, आपको बुरा लगेगा, यार मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो डायबिटीज इन इटसेल्फ, यस, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाता है। इट इज ए डिजीज विच कैन इंक्रीज एवरीथिंग। आप बॉडी का कोई भी ऑर्गन पकड़ लो, ऊपर से लेके नीचे तक, वो उसके अंदर हर ऑर्गन में कॉम्प्लिकेशन रेट्स ऑफ दोज डिजीजेस बढ़ाता है, बट इट इज मैनेजेबल। तो हमें सबसे पहले ये चीज पॉजिटिव साइड देखनी है कि अगर कोई चीज मैनेजेबल है तो वी शुड नॉट क्रेव अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस। अगर मैं कई पेशेंट्स को बोलता हूँ, सर अगर डिजीज मैनेजेबल है, यू शुड बी हैप्पी, द ड्रग इज अवेलेबल एंड यू नीड टू कंज्यूम इट। हमें स्ट्रेस ज्यादा होता है कि कोई डिजीज ऐसी मैंने डिक्लेयर कर दी कि देयर इज नो क्योर, देयर इज नो कंट्रोल, देयर इज नो ड्रग। मे बी सर्टेन कैंसर्स, आप लंग कार्सिनोमा स्टेज 4 में मेरे पास आओगे, सर मैं बोलूंगा सर टाइम लाइन डिफाइन कर देते हैं 3 to 6 months with all even chemotherapy, maybe even surgeries. The timeline is very short. But with diabetes ऐसा नहीं है. We have seen patients who are living with diabetes for the past 3-4 decades.
30 साल की उम्र पे या 40 साल की उम्र पे आए थे, आज 30 साल के बाद भी उनकी एज 70 एंड दे आर स्टिल वेरी हेल्दी, दे आर स्टिल फ्री ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, जस्ट विद द राइट मैनेजमेंट। परफेक्ट। तो मतलब इस चीज से क्या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम डायबिटीज की मेडिकेशन लॉन्ग टर्म में ले रहे हैं तो इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स और एनीथिंग एट ऑल? सी, हियर कम्स द रोल ऑफ द डॉक्टर। मैं राइट। हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूँ कि डायबिटीज की दवाइयाँ प्लस माइनस करनी है कि नहीं करनी है, कोई दवाई हटानी है, कोई दवाई नहीं डालनी है, या कोई दवाई नहीं आ गई है हमको उससे चेंज करना है, हियर कम्स द रोल ऑफ द डॉक्टर। बट व्हाट वी सी इन द इंडियन सिनेरियो इज के सर एक दवाई लिख दो, मैं बस खाता रहूंगा, दे डोंट वांट टू कम अगेन। द पॉइंट बीइंग, हम अपने गाड़ी की भी सर्विस करवाते हैं 3 महीने 6 महीने साल भर में, हम अपने एसी की भी सर्विस करवाते हैं, इवन हम अपने फोन का कवर चेंज करते हैं। व्हाई नॉट आवर बॉडी सर्विस, व्हाई नॉट ए मे बी ए रेगुलर चेकअप, ए थरो चेकअप ऑफ योर body, maybe with some testing, with some ECG, some maybe those kind of testing, which are very easy and which are available everywhere, which are not very expensive. So उससे हमें पता लगता है कि हमारे जो ड्रग्स चल रहे हैं, are they working right? उससे हमें ये पता लगता है कि मेरे को डोज अप टाइट्रेट या डाउन टाइट्रेट तो नहीं करनी है, उससे हमें ये पता लगता है कि मेरे को दवाई तो नहीं चेंज करनी है। तो ये डर बिल्कुल गलत है कि दवाई से साइड इफेक्ट होता है। इवन ए पैरासिटामोल कैन कॉज एलर्जी इन एनी पेशेंट, है ना, वो आपकी एक दवाई एलर्जी कोई भी कर सकती है, और डायबिटीज की दवाई आपका फ्रेंड है, हमको उसको एज ए एनिमी नहीं देखना चाहिए। मतलब इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्कवरी ऑफ द मैनकाइंड टू हेल्प मैनकाइंड। राइट सर। सर इससे ही एक और डिस्कशन बहुत ज्यादा उभरती है जो पेशेंट्स में या डायबिटीज जिनको है उनके दिमाग में एक बहुत सवाल आता है कि एलोपैथी में तो क्योर नहीं है, आयुर्वेदा या होम्योपैथी में इस चीज का शायद उनको क्योर मिल सकता है। एंड व्हेन दे गो टू अ आयुर्वेदिक और अ होम्योपैथी डॉक्टर, दिस इज द कॉमन लाइन सेड बाय देम एज वेल कि सर एलोपैथी ने कोई चीज ठीक करी हो तो बता दो, वो तो आपको एक प्रिकॉशनरी पूरी जिंदगी लेनी पड़ेगी, हम होम्योपैथी से या आयुर्वेदा से उस चीज को ठीक कर सकते हैं। एंड द पेशेंट, द पर्सन हु इज डाउन देयर फेसिंग द प्रॉब्लम, उसके लिए ये भी एक्सपर्ट है, ये भी एक्सपर्ट है, ये भी एक्सपर्ट है। नाउ दैट पर्सन गोज इनटू अ डिलेमा कि मैं किस एक्सपर्ट की सुनूं, किस रास्ते को चुनूं अपने इस मैनेजमेंट के लिए, इस बीमारी की मैनेजमेंट के लिए। That is a very right question, and I face it in OPD on a regular basis. Maybe every other day the patient is coming to me and saying, "Sir, मैं 3 महीने पहले दिखाया था, 3 साल पहले दिखाया था, 2 साल से मैं दवाई नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ? I shifted to आयुर्वेदा, I shifted to होम्योपैथी, मेरे को घर वालों ने डर डाल दिया आपकी किडनी खराब हो जाएगी." The point being, पहली चीज, alternate system of medicines can work. मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ, I am not an expert in Ayurveda, I am not an expert in homeopathy, I am an expert in allopathy. I can tell you the benefits or side effects of allopathy. That is one point. Second is, आपको अगर आयुर्वेदा लेना है या होम्योपैथी लेनी है तो you take it from the approved authorities, approved doctors. What I see is patients किसी बाबा से दवाई ले रहे हैं, वो पुड़िया बना के दे रहा है, वो पुड़िया पे कुछ लिखा नहीं हुआ, वो खा रहे हैं, and what is happening is that they are giving allopathic drugs that to in unregulated amounts. वो ज्यादा दे रहे हैं, metformin, like it's a drug for diabetes, allopathic drug, वो देनी है 500 मिलीग्राम, वो शायद 1500 मिलीग्राम डाल रहा है। अच्छा, उसी में पीस के उसमें पाउडर बना के दे दिया। एग्जैक्टली, मे बी ग्लिमिपराइड डाल रहे हैं, मे बी दोज ड्रग्स व्हिच आर गिवन टू ए पेशेंट इन अ रेगुलेटेड अमाउंट बाय द एलोपैथिक डॉक्टर, बट वो दे रहे हैं एज ए कोएक्स आपको अनरेगुलेटेड अमाउंट्स। अब हम बड़े खुश हो जाते हैं जी हमारा तो शुगर लो हो गया, एलोपैथी में तो मैं 4 गोलियां खाता था, तो चारों गोलियां पीस के उसने डाल दी एंड पेशेंट आर कंज्यूमिंग इट। सेकंड पॉइंट बीइंग, वी हैव टू अवॉइड ऑल दोस थिंग्स। कहाँ पे भी पुड़िया आ रही है, कहीं पे भी ऐसा कोई दे रहा है जी ये कैप्सूल खा लो, ये आपके सब शुगर को कंट्रोल कर देगी, तो हमें वो सब चीजें नहीं करनी है। आयुर्वेदा, होम्योपैथी, if they are saying that they can cure or they can control diabetes, they should give their hand to us. Obviously, all the alternate systems of medicine can go hand in hand. अच्छी बात है, कुछ मेरे को एक हेल्प मिलती है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ डायबिटीज एक मैनेजमेंट से तो होगा ही नहीं। व्हेन ए पेशेंट कम्स टू मी, मैं हमेशा बोलता हूँ देयर आर 5 वेपन्स टू फाइट डायबिटीज। फर्स्ट इज लाइफस्टाइल, second is healthy diet, third is adequate sleep, fourth is stress, fifth is medicine. That medicine can be from any system of medicines, but the source has to be accurate. आपको क्वैक्स के चक्रों में नहीं पड़ना है। वो क्योर दे रहे हैं, अच्छी बात है,
कंट्रोल नहीं कर रहे हैं अच्छी बात है, बट द पॉइंट बीइंग, आपको जैसे हम स्कूल में बोलते थे, सर पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, मेरे नंबर अच्छे आने चाहिए। हम उसी से तो जज करते हैं। आपका A1C अच्छा आ रहा है, आपकी रिपोर्ट सब अच्छी आ रही है, आई एम हैप्पी। अगर आपका HbA1c खराब आ रहा है, आप बोल रहे हो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, still I will say there is some problem in your body, your reports are not showing that your sugar is controlled, so we need to work in that way. सो कंट्रोल हो जाए, क्योर हो जाए, या मे बी कौन से सिस्टम मेडिसिन आपको कंट्रोल दे रहा है या क्योर दे रहा है, दैट डजंट मैटर। अल्टीमेटली योर हेल्दी लाइफ, योर हेल्दी, मे बी योर बैलेंस्ड, जैसे हम बोलते हैं कि आपका, मेरे को अच्छी हेल्थ चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, वो अचीव होनी चाहिए विदाउट गोइंग इनटू द क्वैकरी। गॉट इट। तो मतलब जो भी हम ट्रीटमेंट चूज करना चाहें, जैसे आपने अपने 5 पॉइंट्स बोले, आई वुड लाइक यू टू एम्फेसाइज ऑन देम आफ्टर दिस। बट जो 5th पार्ट आया मेडिकेशन का, तो मेडिकेशन कोई भी ले, बट इट हैज टू बी ट्रस्टवर्दी सोर्स से होना चाहिए। कोई झोला छाप डॉक्टर या बाबा के पास ना जाके, Exactly. जो कि बाकायदा गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हो, सब कुछ उनका जेन्युइन हो, उन जगहों से अगर आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेते हो, दैट ऑल्सो कैन वर्क। एंड अगर उन जगहों से हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लेते हैं, दैट ऑल्सो कैन वर्क। इवेंचुअली टेस्ट तो हमें एलोपैथी वाले ही कराने पड़ेंगे, HbA1c हो गया, और जो डायबिटीज वाले हमारे टेस्ट हैं, शुगर फास्टिंग नॉन फास्टिंग वाला, वो करा के अगर हमारे रिपोर्ट्स चेक कर रही हो, रिपोर्ट्स फिर वो आपके पास भी दिखाई जा सकती है। तो इट कैन वर्क एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स एज वेल। एग्जैक्टली। द पर्सन कैन कम इन एंड से कि सर मैं ये वाला ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, अभी आपकी मेडिकेशन छोड़ रहा हूँ या बंद कर रहा हूँ या रिड्यूस कर रहा हूँ, और मैं आपके पास आता रहूंगा रेगुलरली। दैट वर्क्स। एग्जैक्टली, इट हैज टू बी अ होलिस्टिक केयर। राइट, आपको कंट्रोल लाना है। राइट। अब कैसे भी आए वो, किस तरीके, मतलब किसी गलत तरीके से ना आए, जेन्युइन तरीके से। एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली। 5 पॉइंट्स तो सर आपने अभी मेंशन करे थे, इफ यू कुड एम्फसाइज लाइफस्टाइल। First is a healthy life. It includes walking or brisk walking or running or maybe doing gymming. Second is eating well, balanced diet. Third is adequate sleep of at least 7 to 8 hours. Fourth is stress management, which can be in the form of yoga, meditation, or maybe listening to music, whatever works for you. Last is, even if your things are not in control, medications. ठीक है। एंड वर्कआउट का कोई टाइमलाइन है? See, इफ आई सी द ह्यूमन बॉडी, भगवान ने बॉडी बनाई है कि सुबह उठो, काम करो, रात तक आते आते हमारी बैटरी डाउन हो जाती है, तो रात को आके सो जाओ। सेम वे, इफ वी आर लुकिंग फॉर द मोस्ट इफेक्टिव टाइम when our body is most walking, yeah, maybe for any activity is most pumped, so that is the morning time. But still, if we are not able to, maybe we, because of any other factor, so we can do maybe after evening, or maybe evening stroll, maybe after maybe having your dinner. But obviously I don't recommend going for heavy exercises or gymming after evening, so that should be avoided. ठीक है। And as far as food is concerned, इसमें बहुत chaos मचा हुआ है सर, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग एज न्यूट्रिशनिस्ट एंड फूड एक्सपर्ट्स। तो इसके अंदर आप कोई स्पेशल प्रिकॉशंस जो सब्जेक्टिवली बताना चाहेंगे? सी, द फर्स्ट थिंग इज, वी ऑल आर अवेयर कि क्या चीज हेल्दी है, क्या चीज अनहेल्दी है। बहुत सारा हमें ऑलरेडी पता है, मतलब देयर इज नो पॉइंट के पेशेंट को बताने की जरूरत नहीं है कि ब्रेड पकौड़ा कितना हेल्दी है या आपका वेजिटेबल सैंडविच कितना अनहेल्दी है। ठीक है, तो दे ऑल नो ऑल दोस थिंग्स, बट स्टिल व्हेनेवर अ डायबिटिक कम्स टू मी, आई ऑलवेज टेल देम, मेक योर डाइट मोर कॉम्प्लेक्स। आप जितना उसको कॉम्प्लेक्स कर दोगे, वो उतना हेल्पफुल होगा। एड मोर कलर्स टू योर डाइट। जितना आप ऑप्शंस रखोगे, वेजिटेबल्स या सैलेड्स या मे बी जितने कलर्स नेचर ने दिए, उनको सबको यूज करना है। एंड लास्ट इज, ईट एज रॉ एज पॉसिबल। जितना आप उसको कम प्रोसेस करोगे, कम कुकिंग करोगे या कम पैकेट वाली चीजें खाओगे, दैट विल हेल्प। तो दीज 3 points, they always work. Obviously there can be ups and downs. You might be eating a pizza on a day, you might be obviously eating a फंक्शन में गया, कहीं शादी में चले गए, okay. Cheat days are allowed and you know you're cheating. अब आप आटे में नमक मिलाओगे तो चल जाएगा, नमक में आटा मिलाओगे तो कैसे चलेगा? सही बात है। एग्जैक्टली। तो सर ये तो मेजर फूड प्रोडक्ट्स का हो गया कि वही पिज्जा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, मैदे वाली चीजें नहीं खानी, पैक्ड आइटम्स नहीं खानी। दैट इज क्लियर फॉर नॉट जस्ट डायबिटीज, इट्स फॉर एवरी अदर थिंग, अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो। बट जो हमारे नॉर्मल फूड्स हैं, उसके अंदर भी कोई चीजें ऐसी हैं जो डायबिटिक लोगों को नहीं खानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अरबी के बारे में सुना है।
शकरकंदी को बोला जाता है कि ना खाएं, ऐसे क्या ये सही है या और भी कोई चीजें जो आप यू लाइक टू ऐड टू द लिस्ट इफ इट इज See, करेक्ट? there is always some sugar in everything which we are consuming. So sugar content might vary. किसी में 100 ग्राम में 10 ग्राम शुगर होगा, किसी में मे बी 8 ग्राम होगा, किसी में 30 ग्राम भी हो सकता है. जी तो दैट इज वेरी राइट. हर भगवान ने या नेचर ने जो हमें चीजें दी हैं वो अपने हिसाब से नेचर ने बहुत सोच समझ के दी है. किसी चीज में प्रोटीन ज्यादा डाला है, किसी चीज में कार्ब ज्यादा डाले हैं, किसी में विटामिन अच्छे दिए हैं, किसी में आयरन दिया है, किसी में कैल्शियम दिया है. तो सेम वे जब हम बोलते हैं कि डाइट को कॉम्प्लेक्स कर दो तो हम भी वही नेचर वाला लॉजिक ही लगा रहे हैं कि आपने किसी डाइट से तो अच्छा प्रोटीन ले लिया, किसी से आपने फैट ले लिया, किसी से आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया. But that is very true that arbi or maybe shakargandi or maybe aloo, they are rich in sugar, they are rich in carbs. उनका carb content as compared to maybe if we compare with maybe बैंगन और maybe भिंडी, तो they are like on a higher side. But ऐसा बोलना सही नहीं है कि अरबी अगर डायबिटिक खा लेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी ही होगी. Obviously you should control the quantity, you should not consume it daily, you should consume it maybe once in a week, and that is what is कॉम्प्लेक्स डाइट is. But एग्जैक्टली अगर आप सातों दिन डिफरेंट कुछ सब्जियां खा रहे हो तो यू हैव डन द जॉब. सो वही चीज करनी है. यू डोंट नीड टू वरी कि यार आज मैंने अरबी खा ली तो मेरा शुगर 110 के बजाय 120 हो गया. वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस होंगे. यू डोंट नीड टू वरी फॉर दैट. प्रिंसिपली अगर आप सिंपल शुगर नहीं खा रहे हो, आप चीनी या गुड़ या मे बी कैंडीज या टॉफीज या फ्रूटी या पेप्सी या कोक नहीं पी रहे हो तो प्रिंसिपली यू आर राइट. यू जस्ट नीड टू फॉलो द बेसिक्स. आपके बेसिक्स अगर ठीक होंगे, किसी दिन शुगर आपका 200 भी आएगा, किसी दिन 150 भी आएगा, किसी दिन 120 भी आएगा. एंड दैट काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन इज अलाउड डिपेंडिंग ऑन योर एज. जिस एज ग्रुप में होगे उसके हिसाब से हम बताते हैं कि सर मेरा HbA1c का गोल इतना है, मेरा शुगर का गोल इतना है, मेरा शुगर इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए. We don't need to worry for those minor fluctuations. तो यानी कि जो नेचुरली हमारे पास में शुगर अप एंड डाउन हो रहा है, दैट्स फाइन, दैट कैन बी मैनेज्ड. मतलब वही होगा कि अगर हमने कुछ खा भी लिया तो वर्कआउट में आगे पीछे करके वो मैनेज हो जाएगा. पर जो एक्सेसिव या अलग से हम शुगर खा रहे हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से या किसी और चीज, वो हमें क्लियरली या रॉ शुगर लेना ही नहीं चाहिए बिल्कुल. Ideally, yes, it should be avoided in the as a whole. बट स्टिल ठीक है. मैं हमेशा बोलता हूँ ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बॉडी है. वी माइट बी हैविंग दोस काइंड ऑफ क्रेविंग्स वंस इन ए वाइल. माइंड इट, वंस इन ए वाइल अगर मैं कुछ गड़बड़ खा भी लूंगा मेरे को कोई इशू नहीं है. मैं हमेशा हर पेशेंट को बोलता हूँ जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो भी कभी कभार छोड़ी जा सकती है और जितनी भी बुरी चीजें वो भी कभी कभार ली जा सकती है. तो इट इज द राइट बैलेंस. एवरीबडी नोज वेयर इज द लाइन. तो इफ वी ड्रॉ दैट लाइन, मेरे को अगर महीने में एक दिन में अल्कोहल भी ले लिया मैं भी तो ठीक है, चलता है. बट आप अगर हर दिन अल्कोहल ले रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर क्रॉसिंग दैट लाइन. सेम वे इज एप्लीकेबल फॉर एवरी काइंड ऑफ फूड. कोई फूड अगर बहुत अच्छा है उसको भी आप एक दिन छोड़ सकते हो. कोई फूड बहुत खराब है उसको भी आप एक दिन ले सकते हो. करेक्ट, गॉट इट. अब इसमें एक और सवाल आया था सर कि खाना खाने के बाद अक्सर लोगों को मीठा खाने की क्रेविंग होती है और वो कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं. ये सवाल घूमता है कि कई जगह पे आया गुड़ का नाम, जैगरी, कि वो खा सकते हैं, वो ठीक है, वो नेचुरल बेस्ड शुगर है, या कोई और अल्टरनेटिव आप देना सजेस्ट करना चाहेंगे? See, this question is coming to me for the last decade since I started my practice. मैं जब से प्रैक्टिस स्टार्ट की तब से मैं पेशेंट्स को सुन रहा हूँ और अभी तक सुनता हूँ. सर हम रात को थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं क्योंकि शुगर तो है नहीं और डायबिटिक के लिए गुड़ ही अच्छी चीज है. सो आई वाज वेरी पम्प्ड अप एंड आई रोट एन आर्टिकल ऑन जैगरी, इट्स हेल्थ बेनिफिट्स एंड डायबिटिक्स इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ माय प्रैक्टिस. राइट. सो इट इज स्टिल ऑन द नेट मे बी समवेयर. तो पॉइंट बीइंग, जैगरी इज ए बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू शुगर, बट इट इज नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर. आप अगर ये सोच रहे हो कि शुगर खाने से अगर आपने उसको जैगरी से रिप्लेस कर दिया तो शुगर नहीं बढ़ेगा, ये गलत धारणा है. जैगरी एक अनरिफाइंड अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ शुगर ही है. वो शुगर अगर मान लो कि आपका शुगर खाने से, रॉ शुगर खाने से 100 का स्पाइक आता है तो शायद वो उतना स्पाइक नहीं लाएगा, लेकिन वो स्पाइक जरूर लाएगा क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट है. दैट माइट बी ए लिटिल लो. आपका अगर 100 ग्राम शुगर में हम 100 बोलते हैं तो जैगरी में दैट इज समवेयर अराउंड 78 or 80. I might be, let's say 70% hypothetically. 80%. It is rich in iron, it is rich in vitamins and minerals. So maybe a non-diabetic patient who is consuming sugar shifts to jaggery, that can be a healthy option. But a diabetic patient who is being asked not to consume sugar shifts to jaggery, that is not the right option. तो आपको jaggery principally नहीं खानी चाहिए.
और आपने जैसे पूछा कोई हेल्दियर ऑप्शन, कोई ऐसा ऑप्शन जो मे बी दे कैन टेक इट, राइट। एज सच कोई ऑप्शन है नहीं। वी समटाइम्स टेल पेशेंट कि आजकल नेचुरल जो ये स्वीटनर्स होते हैं, कि आपने जो थोड़ी बहुत मिठाइयाँ बनी हुई है जिसमें वो एडेड शुगर नहीं है, अलग से शुगर नहीं डाल रहे हैं, मे बी some small chicky of maybe dates, small some maybe some all those kind of stuff, they can be consumed, but again we have to keep an eye on that. कई पेशेंट्स का देखा गया है कि उनसे भी अगर शुगर बढ़ता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, बट यस दैट दोस मे बी हेल्दियर ऑप्शंस ऑफ मे बी सम डेट से हमने एक कुछ छोटा सा पीस बना दिया कुछ, या आजकल स्टीविया वगैरह का भी स्टीविया है, ऑप्शन वी आता है। हैव ए ऑप्शन ऑफ शुगर फ्री डेजर्ट जो स्टीविया यूज करते हैं, दे आर नॉट यूजिंग एनी अदर थिंग, सो दैट कैन बी टेकन, बट स्टिल मैं हमेशा बोलता हूँ जस्ट रीड द पैकेट। आपको पैकेट के पीछे अगर वो स्टीविया के अंदर आ रहा है तो वो ऑब्वियसली प्रोसेस तो है, पैकेट को खोल के पीछे पढ़ लो कितना एडिड शुगर है, कितना शुगर टोटल है, या कितना उसमें फैट है, कितना ट्रांस फैट है, टोटल कितना उसका कैलोरी कंटेंट है, उससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा, एंड दैट समटाइम्स resist you or maybe it gives you a sense नहीं इसको नहीं खाना, मेरे को पता ही नहीं होगा पैकेट के पीछे क्या लिखा है तो मैं खा लूंगा। पर सर वो भी अभी काफी हद तक क्वेश्चनेबल है, क्योंकि राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हिडन इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे सिस्टम्स जो ऑफिशियल, मतलब उसमें आप और हम तो क्या ही कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम से उतने स्ट्रांग और स्ट्रिंजेंट नहीं है कि जो प्रोडक्ट सारे उन पे बिल्कुल एक्यूरेट और सारी जेन्युइन चीजें लिखी हो, रैंडमाइज टेस्टिंग नहीं होती है, कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तो। आई होप के आगे हो ये सब चीजें, बट हमें पता ही नहीं चलता इसमें जेन्युइनली क्या डला है। आई एग्री विद यू, हियर कम्स द रोल ऑफ द क्वालिटी। अगर मैं आपसे बात करूं, एक आप कुछ मारुति की गाड़ी ले रहे हो वर्सेस आप रोल्स रॉयस ले रहे हो, बिल्कुल है तो दोनों गाड़ी जी। एक गाड़ी में शायद उन्होंने 100 चेक पॉइंट्स या चेकलिस्ट को पूरा किया, एक गाड़ी ने शायद 1000 को किया है, जी। सो डेफिनेटली गोइंग फॉर ए क्वालिटी प्रोडक्ट विल हेल्प यू इन दैट। अगर आप एक अच्छी कंपनी का कोई प्रोडक्ट बाय करते हो जिसके पीछे कंटेंट्स लिखे हैं तो यूजुअली दे आर राइट। आप एक लोकल कंपनी, मैंने नाम नहीं सुना, समवेयर इन मे बी सम शेडी प्लेस पे वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ठीक है उसमें ऑब्वियसली इश्यूज आएंगे, तो ऑलवेज गो फॉर द क्वालिटी पैक। अगर वो क्वालिटी है तो ठीक है, मे बी 95% वो सही होंगे, 5% उन्होंने भी गलती करी होगी, बट दैट थिंग कैन बी मिनिमाइज दैट वे। 100% तो आई थिंक आई डोंट नो, मे बी सर वो एक्सपेंसिव हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट लार्ज मासेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी जनता है हमारी, 150 करोड़ हम लोगों की बात कर रहे हैं, और शुगर, अगर मैं सिर्फ ये गाइस आर सिटिंग इन दिल्ली और दिल्ली की बात करूं जहाँ पे नाश्ते के अंदर ही भटूरे और कचौड़ियाँ खाई जाती हैं, तो वहां पे सर शुगर का बढ़ना होना इज अ वेरी कॉमन थिंग, वेरी कॉमन थिंग। और वो भटूरे के लिए पैसे खर्च करे जा सकते हैं वो, क्योंकि भटूरे सर दिल्ली में 20 रुपए में भी मिलता है, और जो आपने क्वालिटी का एस्पेक्ट कहा वो 100-150 रुपए में मिलता है। खराब सर दोनों ही है खराब दो। एंड जब हम ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर पैकेजिंग बहुत सारी चीजें आ रही हैं, इट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट टू जज एंड अंडरस्टैंड, और वो फिर वो बहुत महंगा हिसाब पड़ सकता है। आई एग्री विद यू, हियर कम्स द एक्सपीरियंस। अब आपके हमारे किचन के अंदर आपकी मदर, मेरी मदर, वो आपको बेटर बता पाएंगे कि अच्छा इसके रॉ मटेरियल्स ये लिखे हैं तो ये हेल्दी है कि नहीं है। अब उसमें मैदा है, मे बी पाम ऑयल यूज किया हुआ पाम ऑयल है बिल्कुल, तो आपको ऑब्वियसली वो चीजें अवॉइड करनी है। तो आई थिंक अगर मान लीजिए कंटेंट उन्होंने गलत भी लिख दिया कि पाम ऑयल उन्होंने यूज किया 5 ml एंड दे आर राइटिंग इट दे हैव यूज्ड 0.5 ml, बट स्टिल इफ दे हैव यूज्ड पाम ऑयल इट इज नॉट हेल्दी। सो एक हमें ऑब्जेक्टिव या थोड़ा सा हमें एक आइडिया तो मिल जाता है कि इट इज हेल्दी, इट इज हेल्दीएस्ट, या मे बी इट इज अनहेल्दी। तो द पॉइंट बीइंग कि आई थिंक दैट थिंग्स कम विद एक्सपीरियंस। तो ठीक है, एवरीथिंग हैज ए प्रोज एंड कॉन्स, एंड 100% सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन काफी हद तक मैनेजेबल भी है। राइट। अब इसी से कंटिन्यूएशन में एक चीज आती है सर, कि आजकल बहुत सारे गैजेट्स आ चुके हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, और वो पैचेस सिस्टम बन चुका है। एक शुगर मॉनिटरिंग का पैच सिस्टम के बारे में मैंने पढ़ा था कि वो अप्लाई होता है, आपका ऐप से कनेक्ट हो जाता है, तो आप जो भी खाते हो, फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे थे जिस विषय में, जो भी खाते हो उसका वो रिकॉर्ड करता है कि अब ये चीज खाने के बाद में आपका शुगर स्पाइक कितना हुआ, फिर कितनी देर में वो नीचे आया, कितना टाइम लिया, जो कि हम कह रहे थे कि कॉम्प्लेक्स बनाए फूड को। तो ये सारी चीजें हेल्पफुल हैं। दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर मैं आज आपके यहाँ आया हूँ तो मैंने किसी से पूछा नहीं है, आई जस्ट पुट द गूगल मैप, नेविगेटर लगाया और आ गया। इट इज ए टेक्नोलॉजी विच हैज मे बी आई हैव
it made it easier for me to reach here. राइट Otherwise शायद मेरे को 10 जगह रुकना पड़ता, 10 बार पूछना ऑटो पड़ता, ऑटो वालों से पूछना पड़ता, आपको कोई कॉल रास्ता करना का है, पड़ता. बिल्कुल. The same way technology is helping the health in a better way. Hmm. The patch you were talking about is CGM. It is continuous glucose CGM. monitoring Right. sensor. So it's a very small, like a 10 rupees से थोड़ा सा बड़ा होता है. It is placed on the upper arm or maybe in the body. It really helps because ये real time data लेता है, real time monitoring करता है. ये if we go with the current sensors we have, they check your sugars every 15 days, 15 minutes. So roughly it is 96 times or almost 100 times in a day, and it is usually given for 14-15 days. So आपको इतना डेटा मिलता है एनालाइज करने को. आपने मान लीजिए किसी कैलेंडर पे मार्क करना स्टार्ट कर दिया, आई एम कंज्यूमिंग गुलाब जामुन, आई एम कंज्यूमिंग मे बी bread sandwich, I am consuming maybe fruits, I am consuming curd, I am consuming pizza. So आपने वो मार्क कर दिया. Now you can see your sensor, you can see your data. जिस दिन पिज्जा खाया उस दिन शुगर कितना बढ़ा, जिस दिन मैंने सैलेड खाया उस दिन कितना बढ़ा, जिस दिन मैंने कुछ नहीं खाया तो शुगर डिप तो नहीं किया. तो डेफिनेटली these gadgets, these real time devices monitoring your steps, monitoring your maybe your Calorie breathing intake rate, and your, everything, हाँ. they are helping, Heart they are rate. helping exactly. इससे मोटिवेशन बहुत आता है. पॉइंट बीइंग क्या है, मैंने डेटा देखा, मैंने देखा कि मेरा पिज्जा खाने से शुगर 400 चला गया, तो अगली तो बार मेरे को एक मैं रहेगा नहीं यार नहीं खाना है. नहीं वर्सेस मैंने देखा सैलेड खाने से मेरा शुगर बहुत ही कम स्पाइक हुआ, तो आई विल बी मोटिवेटेड टू ईट सैलेड. राइट. सेकेंड, आई एम डूइंग स्टेप्स. मेरे को अभी आइडिया नहीं है, मैं शायद 5,000 स्टेप्स कर रहा हूँ, बट मैंने देखा यार मैं तो फोन में तो यार मेरे ऐप में तो 8,000 दिख रहा है. आई विल बी मोटिवेटेड. नहीं, द नेक्स्ट टारगेट विल बी 10,000, 9,000. राइट. So that way it adds to the motivation and it gives a quantification to your exercise. आप कितना कर रहे हो सही में पता लगता है. आपने बोला सर मैं आधा घंटा करता हूँ, आप पार्क गए, 10 मिनट कोई मिल गया, गुप्ता जी मिल गए, शर्मा जी मिल गए, आपने गप्पे मारनी स्टार्ट की, आपने रियल टाइम वॉकिंग तो 20 ही मिनट करी है. तो दैट वे आप सही बता रहे हो जी, पार्क तो गए आधा घंटा, लेकिन वॉक कितनी करी वो आपको उससे मिलेगी. So these are excellent gadgets. They are really helping diabetes in the long run to reduce the rate of complications, to give a better control of sugars. राइट. और जो आपने बताया था CGM, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, तो इसको रैंडमली कोई भी लगा सकता है या फिर ऑन द डॉक्टर्स एडवाइस? See, the point is, it comes at a cost. It is not, obviously every gadget is coming at a cost. So currently it is costing, the most advanced one is costing around 5,000 rupees for 15 days period. So obviously if you have that kind of money, any diabetic or rather maybe a healthy person can also use it. But if you have constraints of money, if you are not obviously you are worried about that part, so here comes the role of doctor, that which patient is needing it, maybe during certain circumstances, like in a pregnancy, in a lactation phase, in a sick stage, in a patient who is planning for a surgery, and all those patients with a brittle diabetes, so all those patients can be the ideal candidates. राइट. और जिसको प्रूफ चाहिए हो तो वो भी अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप आपको डॉक्टर्स एडवाइस एंड गाइडेंस के साथ में कि हाँ मैंने ये खाया, एंड वो कैन पैसा है तो आपका मोटिवेशनल फैक्टर में हेल्प तो करेगा वो. Exactly, it is. I have many patients, they are not even diabetic, but they are wearing it because they want to know how their body is behaving to the sugar intake. And obviously maybe they have read it from maybe some kind of these kind of podcasts, some social media information. So these are they are good, positive thing to apply. जी सर. अब सर जो आजकल के अर्बन एनवायरनमेंट में, अर्बन स्ट्रेस में, अर्बन वर्क एनवायरनमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, शिफ्ट्स में, ऑफिस में, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, वो लोग इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें? उनके पास तो डेली रूटीन के नाम पे कुछ भी नहीं है. आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट दिस कि वी हैव सीन पीपल जो पूरा दिन ऑफिस में जाते हैं, उनको वापस आके अपना खुद का खाना बनाने के लिए भी समय नहीं रहता. स्टेइंग इंडिपेंडेंटली, नॉट स्टेइंग विद द फैमिलीज, उनके लिए क्या सजेशंस आप देना चाहेंगे? हाउ कैन दे? That is actually a trick question because I don't have a 100% solution for those problems, because somehow they have to manage that part. Because I can only tell you, tell you that this is right, this is wrong, but application has to be done from your side. So I always tell them that थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि कहीं भी manageable है, like in office maybe you're sitting for 8 hours, continuously sitting for 8 hours,
पानी दूर रखो, पानी जाके ही पीना है आपको, वॉशरूम के लिए या मे बी सम क्विक ब्रेक्स, नॉट दो छोटा ब्रेक्स और दोस काइंड ऑफ ब्रेक्स, यू शुड बी टेकिंग ए हेल्दी ब्रेक कि मैं 1 घंटे के बाद अलार्म से 2 मिनट उठ के जाऊंगा ही जाऊंगा कहीं ना कहीं, ऑफिस का पूरा चिट-चैटिंग, चक्कर लगा के आ जाओ कहीं कुछ से। भी करना है मेरे को, मैं चाहे 1 मिनट बाहर जाके आऊं, मैं चाहे दोस्त से बात करके आऊं, मैं चाहे वॉशरूम ब्रेक लूं, मैं चाहे पानी पीऊं, कुछ भी करूं। सो दोज आर स्मॉल थिंग्स। मैं चेंज ये कर सकता हूँ मे बी। दूसरा चेंज हम ये कर सकते हैं कि हम जैसे मल्टीग्रेन की हम बात करते हैं ना, मल्टीग्रेन आटा इज ए बेटर ऑप्शन, और मे बी एडिंग डिफरेंट ग्रेन्स causes a less glycemic spike. हाँ। सो अगेन अब पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि सर अब हम रोटी लेके जाते हैं मल्टीग्रेन की तो ऑफिस में तो वो बहुत खराब हो जाती है। तो मे बी यू कैन लुक फॉर, अगर हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स आर वर्किंग इन गुड़गांव, मे बी दे आर इन नोएडा, दे आर, here comes the role of the again the technology. So you can fix certain apps, food delivery apps who are giving you a hot meal, healthier meal but still maybe a hot meal. So that way you can change. अभी तक वो wheat की रोटी ही लेके जा रहे थे because कि multigrain रोटी लेके जाने का ऑप्शन ही नहीं था। तो that is one suggestion which I give to patient कि आप ऐप से ऑर्डर करना स्टार्ट करो, एक अच्छी ऐप जो अच्छा हेल्दी फूड दे रही हो, मल्टीग्रेन ऑप्शन दे रही हो। ऑब्वियसली तीसरा ये रहता है, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि रात को आप फोन छोड़ दो, थोड़ा म्यूजिक सुनो, मे बी बुक रीडिंग, मे बी वॉट एवर यू लाइक, आपका 10 मिनट अपनी हॉबी को भी दो। मेरे को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, मैं 10 मिनट गाने जरूर सुनता हूँ। तो ऑल दीज थिंग्स एड टू योर पॉजिटिव थिंग एंड दे रिड्यूस योर स्ट्रेस, सो दे कैन डेफिनेटली वर्क इन द लॉन्ग रन। एंड जो हमारा चेंज ऑफ हैबिट्स है, चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, दैट वोंट हैपन इन ए डे। मैंने अगर आज आपको ये सब चीजें समझाई तो शायद अगले महीने अगर आपने 20% भी फॉलो कर दी तो इट्स ए विन विन फॉर मी। तो सेम वे अगर आप उसको धीरे धीरे करोगे तो हेल्दी हैबिट की तरफ चले जाओगे। ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट स्टिल इट इज पॉसिबल, क्योंकि डायबिटीज कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि किसी को पता नहीं है। मैं आपके ऑफिस में हूँ, आप मेरे बॉस हो, मैं आपको बोलूँ सर मेरे को डायबिटीज है, तो ऐसा नहीं होगा आपने सुना नहीं होगा। Every family might be having a single diabetic, or maybe if their family is not diabetic, their immediate some member might be diabetic. Right. So the point being कि we don't need to convince them कि सर मैं तो ये ऐसी बीमारी है, मेरे को ये समझाना है आपको, वो समझ रहे हैं, या मेरे को खाना अच्छा चाहिए। तो obviously things are changing as a कॉर्पोरेट में मुझे लगता है इवेंचुअली ये चेंजेस आएंगे और आने भी चाहिए। तो मे बी एज ए वर्क प्लेस वी कैन इनकॉर्पोरेट सर्टेन, क्या आप अपना लंच ब्रेक 1 घंटे का छोड़ के 40 मिनट कर दो, बीच में 10-10 मिनट की 2 ब्रेक्स और दो। दोज थिंग्स हैव टू बी एट पॉलिसी लेवल, बट डेफिनेटली आई थिंक इन द लॉन्ग रन दोज थिंग्स विल कम। राइट। सो आई हैव सीन पीपल, याद आ गया मेरे को इससे एक बात, यूट्यूब पे गया है, वो बीच बीच में उठता था और सिटअप्स करता था, क्योंकि कहीं जा नहीं पाते थे, कहीं और जा नहीं सकते या कुछ नहीं कर पा रहा, उठे 4-5-7 सेटअप करे, वापस अपने काम पे बैठ गए। आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन, इफ समवन वांट्स टू डू इट देन दे कैन डू इट। तो चीजें करी जा सकती हैं। और जो खाने वाले ऑप्शन हैं आजकल गुड़गांव की साइड में, होम किचन्स और क्लाउड किचन्स ऐसे बहुत बन गए हैं, जहाँ पे आप फिक्स अपना बता दो क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, पूरे महीने का उसके अंदर स्केड्यूल बन जाता है। तो ऑप्शंस आर अवेलेबल, आई एग्री विद यू ऑन दैट पार्ट के। बट अगर असली गेम तो वहां पर है कि अगर हम 1 महीना करके छोड़ना चाहते हैं या फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो ही उसका बेनिफिट नजर आएगा, वरना 1 महीना करके छोड़ते रहेंगे तो ना तो आयुर्वेदा में कुछ मिलेगा, ना होम्योपैथी में कुछ मिलेगा, ना एलोपैथी में कुछ मिलेगा, किसी भी चीज से कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। आई एग्री विद यू। मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूं, इफ आई एम गिविंग यू 100 टिप्स, इफ यू कैन फॉलो 50 दैट इज अगेन ओके विद मी, बट द परसिस्टेंस हैज टू बी देयर। आपको करना लंबा है। अब अगर आप 100 की 100 कर लो लेकिन करोगे मे बी महीने के लिए, तो वो फिर नहीं बनेगी बात। तो कम कर लो लेकिन लंबा करना है। तो आपको लगता है कि माई कैपेसिटी इज 10, यू डू इट 12, आप थोड़ा उससे ऊपर जाओ, बट करना उसको लंबा है। जहां लगे बहुत इजी हो गया है, तो मैं तो बहुत रेगुलरली कर पा रहा हूँ, फिर द नेक्स्ट गोल विल बी 15। तो दैट वे यू कैन रीच द गोल ऑफ मे बी 70 और 80। हम शुगर की भी बात करते हैं तो हम एक टाइम इन रेंज देते हैं कि टाइम इन रेंज इफ इट इज 70 टाइम्स, लाइक अगर आपके 100 में से 70 टाइम शुगर ठीक आ रही है तो वी से यू आर ओके। तो सेम वे अगर हैबिट्स की भी बात करूं, आई विल गिव ए टाइम इन रेंज। 100 में से अगर आपने 70 टाइम ठीक हैबिट्स फॉलो कर ली, यू आर एट द राइट ट्रैक। नोबडी कैन बी 100% परफेक्ट। ये समझना जरूरी है लोगों को, शुगर तुम्हें एक दिन में नहीं हुई है या 1 महीने में नहीं हुई है, बहुत समय चलते 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 वो डायबिटीज का लेवल पहुंचा है, तो उसको जाने में भी तो बहुत समय लगने वाला है। एग्जैक्टली देयर इज अ इंक्यूबेशन पीरियड। हम हर डिजीज में बोलते हैं कि कुछ इंक्यूबेशन पीरियड होता है, एंड फॉर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज इट इज यूजुअली इन ईयर्स। 5 से 10 साल 15 साल तक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद जाके आपको डायबिटीज
दिखना स्टार्ट होता है. So definitely it might take some time, but ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता. तो ये रिवर्सल का यही प्रोसेस है. See, the word reversal is not right. First of all, we have to correct the English. I have seen many apps, many online डायबिटीज रिवर्सल टर्मिनोलॉजी reversal programs are और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यूज किया जाता है डायबिटीज रिवर्सल. exactly. That is, you are very right. It is a marketing gimmick. It is nothing else. So reversal इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं. मैंने आपको 3 महीने कुछ ऐसा दिया, आपका शुगर वापस चला गया और अब नहीं आएगा. That is not right. आपने 3 महीने सब कुछ अच्छा फॉलो किया, आपने छोड़ा तो शुगर दोबारा आएगा. डायबिटीज कैन गो इनटू रिमिशन. मैंने आपको 7 सब अच्छा किया, आपने सब कंट्रोल किया, शुगर आपका चला गया, दवाइयां 0 हो गई. दैट इज रिमिशन. बट जैसे ही आप वो लाइफस्टाइल छोड़ोगे, आपके शुगर लेवल्स वापस बढ़ सकते हैं. तो इसीलिए द राइट वर्ड इज रिमिशन. रिवर्सल इज ए मार्केटिंग गिमिक ऑफ द ऑनलाइन कंपनीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स. वी डोंट नीड टू फॉल इनटू द ट्रैप. It makes you happy, you can accept the term of reversal, but the truth is diabetes can go into remission, it can't be reversed, and that is for every disease. मैं आज अच्छा पढ़ाई करता हूँ तो मेरे नंबर आएंगे, मैं कल पढ़ाई करना छोड़ दूंगा मेरे नंबर गिर जाएंगे. बिल्कुल सही. मैं आज घर को साफ रख रहा हूँ तो वो साफ रहेगा, कल सफाई करना छोड़ दूंगा तो घर भी गंदा होगा. बिल्कुल. I don't know why we are just worried कि डायबिटीज रिवर्स हो जाए, बाकी सब चीजें रिवर्स हो ना हो. तो ये नेचर का रूल है, आपके लिए हर चीज के अंदर एप्लीकेबल होता है. द डे यू स्टॉप पुटिंग एफर्ट इनटू दैट थिंग, इट विल गो इनटू द स्टेज वेयर वी स्टार्टेड. Got it. So if we talk about the numbers of diabetes, it is huge. If we see India only, I'm not talking about the global population. India में roughly 70 million. So Indians को करोड़ में ज्यादा अच्छा समझ में आता है. 7 crore plus people are living with diabetes, and it is the numbers of diabetes which we know. इसमें हम एक आइसबर्ग फिनोमिना बोलते हैं कि जितना हमें दिख रहा है उसके नीचे कितना है. जैसे हम what is above the surface and what is below the surface. So below the surface, the number of pre-diabetics, the patient with impaired glucose tolerance who are going into the phase of diabetes is still very huge. So almost double of 7. So almost 14 crore people plus are living with pre-diabetes or impaired glucose tolerance or impaired fasting. So they are the like pool of people who will be addicted to diabetes if not controlled. So if we see the population as a whole, roughly 8 to 9% of population is having diabetes. पहली चीज. दूसरा, अर्बन और रूरल एरिया में डिफरेंस नहीं है. ऐसा बोलते थे गांव में तो कम है, अर्बन में ज्यादा है. द नंबर्स आर डिफरेंट. डेफिनेटली अर्बन पॉपुलेशन में थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव में है ही नहीं. एंड वन मोर डेटा, we always say rice eaters are getting more diabetes, or maybe South Indian population of diabetes ज़्यादा है. We have seen data of North India, we have seen data of West India, East India. चारों ही रीजन में there was seen to be equal, almost equal prevalence. So पूरे भारतवर्ष में कोई discrimination नहीं है. The number of diabetes are always they are almost similar. So we really need to work on that part. जी बिल्कुल. है तो ये बात वैसे अचंभे की ही है. मतलब इस पे डेटा एक अभी स्टडी भी आई थी. We divided the patient according to their eating habits, and still we could not find a difference in the prevalence of diabetes. So सबके अलग-अलग ईटिंग हैबिट्स हैं. the carb, और अलग-अलग फूड टाइप भी अलग-अलग है. The type of food, carbs को हमने डिवाइड किया था कि like the major carb eaters versus लेकिन राइस खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, जो मर्जी खा रहे हो, they were having almost similar prevalence of diabetes. तो सर हो सकता है कि इसके अंदर फूड इनटेक तो हमारा सेम ही चलता आ रहा है जो रीजनल हो, पर मेन कारण ये हो कि अब हमारा वर्किंग जो है, फिजिकल वर्क जो है, वो हमने बिल्कुल ही किल कर दिया है. क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो चुका है, सब बैठ के काम कर रहे हैं, पर्सनल व्हीकल्स बढ़ चुके हैं, तो फिजिकल वर्क तो बंद ही हो चुका है ना. दैट इज वेरी राइट. एक्चुअली मैं एक और चीज बताना चाहूंगा अब, क्योंकि इंडियंस में हम टर्म यूज करते हैं टोफी, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड. कि हमको देखने में लगेगा ये पतला मनुष्य है, पतला क्या इसको क्या तो डायबिटीज होगी, बट द कॉन्सेप्ट इज दैट ओनली कि हमारा वजन बाहर से नहीं दिखता, बट वी आर कैरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फैट अराउंड आवर लीवर, अराउंड द सेंट्रल एडिपोसिटी इज वेरी गुड. सो इन इंडिया एज कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन, द डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, कम वेट पे हैं. And Indian gene is considered to be a weaker gene as compared to our Western counterpart. Maybe अगर हम यूरोप या यूएस से कंपेयर करते हैं,
they are getting complications at a later stage of life. They are getting problems after many more years of diabetes. But in India, आपको diabetes होगा, आपको complications जल्दी होंगे, कम weight पे होंगे. So that is again one thing we have to be very careful about. हमें देखने में लगता है पेशेंट पतला सुकड़ा घुसा, यार डायबिटीज चेक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हो सकता है शुगर. तो वो भी एक चीज है जो हमें देखनी चाहिए. सर इतने सारे मिथ्स की बात हुई है और इतने सारे टर्मिनोलॉजीज की बात हुई, तो क्विक एक छोटा सा मिथ बस्टर कर देते हैं, जिसके अंदर हम एक मिथ बस्टर रैपिड फायर करते हैं. ब्राउन शुगर इज हेल्दियर. It is better than white sugar but not healthier. ओके. डायबिटीज इज जेनेटिक्स ओनली. No, it is a multifactorial disease. Many factors contribute to diabetes. ठीक है. ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होती है. No, मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती है, लेकिन अगर डायबिटीज है तो मीठा नहीं खाना है. Got it. Fruit juices are healthy. No. If nature wants to give you fruit juices, it should have given you fruit juices. Nature wants you to eat the raw fruit. It wants you to have fiber. So I think we should not process it. Nariyal pani comes in the liquid form. Consume nariyal pani. Rest fruit juices we should obviously have raw fruits. Got it. Brown bread is healthy. Again, it is a better version of maybe consuming maida. It is a better option as compared to maida, but it is not 100% free from glycemic load. There will be some glycemic load. There will be some glycemic spike as well. So, but again, it is a better option. Got it. OMAD, 1 meal a day is in hype. उसकी क्या reality है? Not very valid for diabetes. Rather, we should go for the other approach. In diabetes, we always tell small, frequent meals. 1 meal at a day, 1 meal at a time, 1 meal in a day, you will spoil your sugar. There will be more fluctuations. There will be more chances of developing hypos. So, multiple, small, frequent meals is the key for a diabetic patient. Right. People with fast metabolism don't get diabetes. Myth or fact? It's a myth. Fast metabolism is a very raw term. Who is having fast metabolism? What is fast metabolism? So, it's not true. तो उसको उनको भी डायबिटीज हो सकती है. Exactly, they are equally prone for developing diabetes. There might be fast metabolism. We say that a patient might be thin. He is not developing that kind of weight with eating the same kind of food. So those kind of patient, in the raw term, we are saying they are fast metabolizers, or they are consuming the calories in a faster way. But they are equally prone for diabetes. There is no proven data, as I can gather, for things like a fast metabolism. The patient with a fast metabolism is less likely to have diabetes. All right, sir. This round is over here. At the end, to close this conversation, it's been a very interesting conversation. Got to know a lot about diabetes today, and I'm sure जनता को बहुत मदद मिली होगी. Any closing message that you'd like to give to the audience? The closing message, I would like to, the one myth you have not added is insulin. I am very, very insulin pro diabetic doctor, because I know that insulin is your friend. So I would like to add the last myth or fact is whether insulin is harmful or beneficial. Insulin is always, always, always beneficial. If your doctor is advising, you're a diabetic and he or she is advising you to take insulin, take it. Don't worry. You should take it. You should. It's a very, if I say, I would add few lines to this. Insulin was discovered in 1921. So it is almost 104 years old. It is the oldest medicine available for diabetes right now. So there has been plenty of as we have iPhone 17 or 18 going in right now. So the same way, the insulin we used to have many years back and the insulin we are having right now is very advanced. So it is the most advanced diabetes medicine known to the mankind, and it will help you in every scenario. Patient with a kidney failure, patient in hospital, patient in pregnancy, patient in lactation, patient in special conditions where their sugars are not getting controlled, where we have to maybe bring down their sugars to the desired limit, and the medicines are not left. We say the patients I can't increase the dosage of medicine beyond this point. The insulin should be started and there should not be delay. So that is one myth I always tell, that insulin is your friend. Don't take it as a friend enemy. Got it. Thank you so much, sir. Thank you so much. And that's all for today. Hope all your doubts are cleared. If you still have any doubts, questions, and queries, please put it in the comment box and we'll try and connect with Dr. Ritesh Bansal.
and try to get those answers for you. And thank you so much for watching. And thank you so much for Thank coming you. today, sir. Thank Thank you. you so much. Thank